गुप्ता जी, आपका माइक्रोफोन ऑफ है। इसको ना आनंद जी और नितिन जी, आपका भी माइक्रोफोन ऑफ है। उन्होंने किया था वो होस्ट तो उन्होंने कर दिया होगा ना सर, अभी कर देंगे 5 पर। अच्छा अच्छा, यस आपका तो ऑन है सर। हाँ मेरा ऑन है, तभी मैं बोल पा रहा हूँ। हाँ जी सर थैंक यू सर। हाँ जी सर, मैंने बंद कर रखा था डिलिबरेटली। कैन यू हियर मी नाउ? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। आनंद जी, आपका माइक्रोफोन बंद है अभी। हाँ अभी शुरू हुआ। म्यूट कर रखा था, मैंने डिस्टरबेंस नहीं है। हाँ नहीं ठीक है, शुरू करें। 5:05 हो गए हैं। पूछे उसको चालू कर दे। हेलो Yes, sir. Please start the vaccine, sir. we can start. Yes, sir. Good evening friends, I am host KK Gupta here, representing Resurgent India. It is my privilege to heartily welcome all the participants who are entrepreneurs and also bankers, and also some industrialists are there. I am delighted that more than 200% already joined this program. We are thankful to you, and being a Resurgent India, we are a merchant banker category 1, and we are also growing investment bankers. We are dealing with all the financials matter, including the debt syndications, debt reconciliations, and we are also doing a technical viability study, and various other aspects we are doing it as a Resurgent India. It is my privilege to welcome the speaker, Shri Binod Agrawal ji, who is having a experience of more than 2 decades, and he floated this company of infra in 1995, and thereafter it has grown like anything. At present is a leading infrastructure company of India, and Mr. Agrawal is the main pillar, and he is the promoter director of this company, who is with us, and he has been awarded by the Hindustan Times as an excellent person, excellent personality, and his vision for the infrastructure was really remarkable, and he is doing excellent job for the country and for the economic development of the country. So he has also participated in various bid of the government, Boot and Havertz, and also doing EPC contractor. He more than 100 projects he is already doing it, and really
I am very blessed by him to join for this program. Welcome, Mr. Agarwal, for this webinar. We welcome you and we will come back to you regarding your thoughts process. I also welcome Mr. Anand Rathi, who is the CFO and Chartered Accountant of the infra company. And he is a well-qualified person and looking after the financial aspect of the company and also financially modeling and arranging the funds from the financial institutions. He is a dynamic personality. We'll also know from him what is his viewpoints about the COVID-19 and how he foresees the financial position of the infrastructure companies. I also welcome Nitin Agarwal, who is an engineer, and he had done his industrial and production engineering in 1988. Thereafter, he is MD of the Path Infra, and he is looking after all the boot projects, Harvard projects, and beside that, his expertise in toll collections. More than 50 toll collection is there in 14 states, and he is a well-known personality in the infrastructure sector. Mr. Agarwal is also found, he's just doing great work for the skill development of the young entrepreneurs of the, you can say, engineering colleges, and he's going there and giving the skill development for these young entrepreneurs of the college. So we welcome him also. So being here, so you will find that the main topic of today is opportunity and challenges faced by the infra, special reference to a builder. This is the main object of this workshop. You know that Prime Minister, Mr. Modi, has announced that within 5 years, so India's economy should be touched to $5 trillion US dollar. For that, ICRA has made a study. So it's telling that it is required 235 lakhs crore rupees in last 1 decade up to 30. So this money is required to have a development under the under the dream project of our prime ministers. Beside that, it requires, you can say, GDP growth of around 7.5%, and also envisages that the GDP about 6% investment should be there in infrastructure. Because infrastructure play a very important role under the system because it is creating employment. About 12% of the employment working people are from the infrastructure. Beside that, it is contributing a GDP, about 9% of the GDP contribution is there. So we can say the infrastructure will play a very important role in coming years. Now, main issue is for COVID-19, what will happen? Question is, there is financial difficulties are there. For the Reserve Bank of India also come out on 27th March, a circular where they are telling it a deferment of the installments and interest for the period of 3 months period. That if enjoying a working capital limits, some banks are giving 10% of the total working capital limit as a COVID assistance to the entrepreneurs, to the parties. So infrastructure, they are also giving. But this money is sufficient because I find one press report, there is one infrastructure company who is incurring about 15 crore rupees per day toward the labor, arranging a food, hospitality or other thing. They are investing about 15 crore rupees per day. So this is a fixed expenses. Are the infrastructure companies are doing it? Whether this 10% or for a deferment of interest or installment will play roles for that infrastructure company, because infrastructure is a backbone. Are you also aware that NPL level in infrastructure companies, especially power sector, are going very high? So certain banks has not giving even a loan to them, and infrastructure is facing a very problem. Last year we find that there is a growth in the lending of the banker for the this project, infrastructure project. There is a growth is there in credit. These are the aspects we are going to talk. So first of all, I invite Shri Vinod Agarwal, who is an efficient personality, who has a vision, who is also vice chairman, vice president of this federation. That is a federation, and he is the right person
to tell us what are the challenges faced by the infrastructure companies and how it can be, you can say, overcome. These are the aspects which we have talked to Mr. Agarwal. Now I request Mr. Agarwal, now floor is yours, Mr. Agarwal. Please let us know what is the challenge faced by the infrastructure company, and what are the views of your federation, which you must have put up to the government. Any concession you required for this from the government, except the two things which government has also announced. I think bank must have provided deferment of the installment term loans, and beside 10% of the working capital limits as a additional limits by resetting the working capital cycles, and also assess the revised limits. Now this floor open to Mr. Vinod Agarwal. Vinod Agarwal ji. नमस्कार, धन्यवाद गुप्ता जी। Thank you sir, thank you very much sir. सर, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग मेजर हाईवे सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं, तो हाईवे सेक्टर में जो मेजर इश्यूज हैं वो है लैंड एक्विजिशन को लेके। Right. अभी ठीक है, कोरोना से रिलेटेड इश्यूज हैं, पर ये हमें लगता है कि ठीक है, हर कंपनी को, हर ऑर्गेनाइजेशन को इतना मजबूत तो होना चाहिए कि वो 1-2 महीने के कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उतने झटके सहन करे। Right. तो अभी मैं ये समझता हूँ कि जून जुलाई में ठीक से सब कुछ काम शुरू हो जाने चाहिए। हाँ जी। तो 1-2 महीने खराब होंगे तो उसके लिए गवर्नमेंट उसके लिए देख रही है, तो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट से हम लोग को बहुत ज्यादा कुछ नहीं मांगना चाहिए इसके लिए, लेकिन जो बेसिक जो प्रॉब्लम्स है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो गवर्नमेंट उनको ध्यान दे आगे फ्यूचर के लिए। जैसे आज रोड सेक्टर में लैंड एक्विजिशन सबसे बड़ा हर्डल है, लैंड एक्विजिशन पे उस पर ध्यान दे। दूसरा, क्योंकि जो जितने भी हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं, रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, सब सेंट्रल गवर्नमेंट्स के हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट उतना नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए। तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ प्रॉपर लाइजनिंग होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का उतना इंटरेस्ट होना चाहिए जितना सेंट्रल गवर्नमेंट का है, क्योंकि मेजर बेनिफिशियरी है वो स्टेट गवर्नमेंट है। तो स्टेट गवर्नमेंट उतना सपोर्ट अभी आज के माहौल में नहीं कर रही है जितना होना चाहिए। राइट सर। तीसरा, लेबर लॉ जितने हैं वो और उनका सरलीकरण होना चाहिए। आज मिनिमम वेजेस है, पीएफ है, ये इश्यूज हैं। आज मिनिमम वेजेस से कम पे कोई आदमी कहीं पे भी नहीं आता है, लेकिन अननेसेसरी उसके लिए बहुत ज्यादा मैन पावर और उसके लिए जाता है, उसको ऑर्गेनाइज करने में, उसको मैनेज करने में। तो लेबर लॉ को और इजी करना चाहिए। तीसरा सबसे बड़ा इशू अभी आज के दिन जो आ रहा है, लेंडर्स सपोर्ट। लेंडर्स क्या है कि थोड़ा सा उतना सपोर्टिव नहीं है जितना होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में। लेंडर्स अपनी गलतियों, कुछ जैसे उन्होंने कुछ अपने सिलेक्शन प्रॉपर नहीं किए और उनको प्रॉपर उनका वापस रिपेमेंट नहीं हुआ, तो उसके लिए पूरा सेक्टर को ये लोग बोल देते हैं कि नहीं साहब वाइबल नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए। आप मेन पार्टी को देखिए, प्रमोटर को देखिए, कौन पार्टी कैसा काम कर रही है उसको देखिए। आप पूरे सेक्टर को खराब कर देते कि नहीं साहब हमको हमें नहीं फंडिंग करनी है या बीओटी को फंडिंग नहीं करनी है। तो जो पार्टियां अच्छा काम कर रही है उनको सपोर्ट करे। सिलेक्शन उनका गलत था और पूरे सेक्टर को गलत बता देते हैं। तो लेंडर से सपोर्ट सबसे ज्यादा आज के माहौल में चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बिना लेंडर सपोर्ट के नहीं हो सकता है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट लेंडर सपोर्ट है आज के दिन। सर, जो ये है 5,900 बिलियन का जो प्रोजेक्ट है अंडर प्रोसेस में है, हाँ जी हाँ, तो इसमें क्या समझते हैं, कोई बैंक को प्रोटाइज करा, इसको एनएचआई को कोई प्रोटाइज करना चाहिए, किसको पहले कंप्लीट किया जाए, किसको पहले बाद में कंप्लीट किया जाए, या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं सुन रहा था, देख रहा था, कुछ स्टार्ट भी कर दिए हैं कई स्टेट में, ऐसा चल रहा है सर कुछ? क्या काम तो शुरू किए हैं कुछ, जैसे कोरोना के बाद की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ सर, कोरोना के बाद की बात। हाँ, कोरोना में जैसे एनएचए पूरा सपोर्ट कर रहा है, एनएचए पूरी परमिशन दे रहा है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स परमिट नहीं कर रही है काम चालू करने के लिए, लेकिन हम लोगों ने भी जितना हो सके मैक्सिमम 75% नंबर जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे काम शुरू किया है, पर वो फुल स्विंग में नहीं हो रहा है। 10 से 15% स्पीड से ही काम हो रहा है। कुछ सर्टेन एक्टिविटी। लेबर आ रही है सर? क्या लेबर आ रही है? लेबर जो लेबर अवेलेबल है वहां पे, जो कैंप छोड़ के नहीं गई थी, उनसे हम लोग काम करा रहे हैं और इस तरह की एक्टिविटी शुरू की है जिनमें कम लेबर की जरूरत है, जो मशीनों से काम हो रहा है वो काम शुरू किए हैं। नहीं सर, आपके पास तो इतने इक्विपमेंट्स हैं, मैं कहीं पढ़ रहा था, कहता 4,600 इक्विपमेंट्स आपके पास हैं,
अबाउट 13,000 कहते हैं जी आपके पास लेबर है, जी हाँ, जी हाँ। somebody are writing. तो सर वो लेबर में से कितने % आपके पास आ रही हैं सर अभी ये हमारी जो 13,000 की स्ट्रेंथ है वो एक्चुअल में लेबर नहीं है, ये सर। ऑपरेटर्स, ड्राइवर्स, लेबर तो बहुत कम है इसमें, सर डायरेक्ट हमारे रोल पे लेबर नहीं रहती है। हाँ जी, तो इसमें करीब 40-45% लोग प्रेजेंट हैं हमारे प्रोजेक्ट साइट पे। अच्छा है अभी इतने। तो अब समस्या वही है कि जब कोरोना के बादल हटेंगे और जब काम शुरू होंगे तो सब लोग एक बार बिखर गए हैं, सब अपने घरों पे चले गए हैं, गांव में चले गए हैं। यस सर, ज्यादातर क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन की जो लेबर है यूपी और बिहार की सबसे ज्यादा है, राइट सर। तो ये लोग सब अपने स्टेट में चले गए हैं, तो उनको वापस बुलाना एक बड़ा चैलेंज रहेगा। सर दूसरी ये पॉइंट है जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है $5 ट्रिलियन हम इकोनॉमी बनाना चाहते हैं 24 तक, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे ख्याल में तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपको क्या अपॉर्चुनिटी नजर आती है सर इसमें? सर इंफ्रास्ट्रक्चर से देखिए क्या सब, आज पुराने टाइम में आप बात करें, जब नेशनल हाईवे के काम शुरू हुए थे, हाँ जी जब सर। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने जब ये शुरू किए थे काम, सर उस वक्त आप देखिए सारी इकोनॉमी पूरी गिरी हुई थी, सारे सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, सब एकदम गिरे हुए थे। राइट उनके विजन से ये नेशनल हाईवे के काम और जो रूरल रोड्स के पीएमजीएसवाई, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ये दोनों एक साथ काम जब शुरू हुए थे हाईवे सेक्टर में, सर। उस वक्त एकदम इकोनॉमी को बूस्ट मिला था। तो राइट अगर जो हमारे अभी के प्रधानमंत्री जी जो 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा से ज्यादा खर्च करेंगे सर, तो उसमें हर इंडस्ट्री को उसके अंदर बूस्ट मिलेगा। वो तो सर ये कह ही रहे हैं ना, जी हाँ, 235 लाख करोड़ रुपया चाहिए इवन डिकेड के लिए, दे आर एस्टिमेटिंग लाइक दैट। उसमें ये कह रहे हैं सर जो पब्लिक पार्टनरशिप है और ये प्राइवेट कंपनीज हैं उनको ज्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए, ऐसा कुछ न्यूज में आ रहा है। तो आपके ख्याल में सर जो प्राइवेट पार्टनरशिप कंपनीज हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं, या जी। प्राइवेट जो कंपनी को वो इनवाइट कर रहे हैं, जो ये आपके मिनिस्टर साहब हैं गडकरी साहब, उसमें क्या कुछ लोग आगे आ रहे हैं सर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए? पीपीपी तो आज काफी टाइम से चल ही रहे हैं सब, पब्लिक ये प्राइवेट कुछ और पार्टनरशिप। एडिशनल की बात और कर रहा हूँ। एडिशनल तो अब उसमें वही है सब, कंपनियां अपने इंडिया में बहुत ज्यादा बड़ी कंपनियां नहीं है, राइट तो सर, उसमें बैंकर्स का सपोर्ट चाहिएगा। राइट सर, और बैंक क्या थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे होते हिल जाते हैं कि साहब हम तो नहीं करेंगे इस सेक्टर को। राइट सर। तो इसलिए आपका ओपिनियन है जो बैंकर सपोर्ट इज अ मस्ट, बिल्कुल बैंकर को बिल्कुल। सपोर्ट करना चाहिए, तो ये आप कर सकते हैं। जी हाँ, जी Thank हाँ। you, sir. I will come back to you. Now I request Mr. नितिन अग्रवाल। अग्रवाल जी, आपके तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है जो टोल कलेक्शन के लिए है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ स्टेट में भी आपका बहुत अच्छा है, कुछ टेक्नोलॉजी आपने डेवलप कर रखी है। अग्रवाल साहब आप बताएंगे जो टेक्नोलॉजी आपने कलेक्शन के लिए डेवलप करी हुई है और कैसे आपने इतनी कंपनी इतने सालों में आपने, यू आर बीइंग इंजीनियर, इस कंपनी को कितने बड़ी ऊंचाइयों पर ले गए। तो ये कुछ आप बताएंगे गवर्नमेंट से क्या सपोर्ट चाहिए आपको फर्दर के लिए? और टोल जो है मेजर एस्पेक्ट टोल का है, अब लॉकडाउन पीरियड में टोल तो बहुत कम हो गया होगा और आगे भी कुछ गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे हुए हैं, महाराष्ट्र में हुआ, कुछ जगह हुआ है जहाँ की टोल बंद ही कर दी है, टोल कलेक्शन करना ही बंद कर दिया। हाउ इट इज इम्पैक्टेड योर इकोनॉमी सर एज ए कंपनी? मिस्टर सर अग्रवाल। पहले तो मैं सबको धन्यवाद देता हूँ इस पार्टिसिपेट करने के लिए वेबिनार में। आपका कहना सही है कि जैसे ही ये लॉकडाउन शुरू हुआ, सबसे पहले देश के सारे टोल बंद कर दिए गए। यस सर। आवश्यक भी था क्योंकि टोल पे, जबकि काफ़ी हमारा कलेक्शन आजकल इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग से होने लग गया है, परंतु फिर भी जो करेंसी नोट का ट्रांजैक्शन होता है उससे लोगों का टच से कांटेक्ट होता है और कोरोना वायरस फैलने की बहुत बड़ी संभावना थी सर। तो प्रधानमंत्री जी ने और जो भी अधिकारी लोग थे उन्होंने उचित निर्णय लिया, टोल को बंद किया। 20 अप्रैल से वापस टोल शुरू हुए हैं। तो जैसा आपने कहा कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, यस सर। तो सबसे पहले तो हमें अपने एम्प्लॉयज़ को सबको सेफली उनके घर भेजना था या सूटेबल जगह पे प्लेस करना था। हाँ जी सर। वो हम लोगों ने इमीडिएटली करा। उसके बाद जो डेफिनेटली हमारे फंड फ्लो सारे रुक गए, बैंकर्स भी वरिड थे और अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन भी ऐसे समय पर आई
जब हमारा मार्च एंडिंग था, तो मार्च के एंड में सारे सबके फाइनेंशियल्स सब लोग कोशिश करते हैं कि सुधरते रहें, पर उस समय में लॉकडाउन हो गया। पर ठीक है, ये ऐसी सिचुएशन है जिसको कोई भी हेल्प नहीं कर सकता था। नहीं तो सर, इस period- बैंकर ने कोई हेल्प किया आपको? जो बैंक्स हैं उन्होंने 10% ऑफ वर्किंग कैपिटल लिमिट्स है, तो मेरे ख्याल में तो आपकी तो मैक्सिमम नॉन फंड बेस्ड लिमिट होगी। नॉन फंड बेस्ड लिमिट को तो उन्होंने कुछ किया नहीं होगा। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल आपका कैसे चल रहा है? जो इतने आपके फिक्स एक्सपेंसेस हैं, हाउ यू आर मीटिंग, वेदर बैंकर आर सपोर्टिंग यू, और अभी आपकी क्या जैसे विनोद जी ने कहा, एक्सपेक्टेशंस है? अभी जैसे विनोद जी ने कहा कि कंपनीज में इतनी स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए मिस्टर अग्रवाल, कि अगर 1-2 महीने तक कुछ दिक्कत आ जाए तो हम लोग सस्टेन कर पाए। तो लकीली अभी तक हमें ऐसी परेशानी नहीं आई है, यस सर। और अब वापस टोल शुरू हुए हैं। अभी टोल कलेक्शन धीरे धीरे शुरुआत हुई है। इनिशियली जब हमने 20 तारीख को शुरू करा तो करीब 20 से 25% रेवेन्यू आ रहा था। पर मैं आपके यस साथ सर। शेयर करना चाहूंगा कि हमारे करीब करीब हेलो 45-50 टोल चल रहे हैं हेलो। अक्रॉस द कंट्री। हेलो, नहीं सर, क्या जो आवाज आ रही है? आपके, मेरा पॉइंट सर इतना है, जो आप, मैं देख रहा था कहीं आपका 4000 किलोमीटर पर आप टोल कलेक्शन कर रहे हैं अंडर ओएमटी मॉडल में, ऑन ट्रांसफर जो मॉडल है उसमें आप कर रहे हैं। उसमें सर आपका क्या है? ये दीजिए सक्सेसफुल मॉडल सर, ओएमटी जो मॉडल है, दैट इज सक्सेसफुल ऑर्डर बिल्कुल सक्सेसफुल मॉडल है, सर। क्योंकि एनएचएआई के पास और कोई सिस्टम नहीं, जैसे पुराने पीडब्ल्यूडी के पास होता था, उनका खुद का मेंटेनेंस सिस्टम होता था। सर एनएचएआई ने सड़कें बना दी, पर मेंटेनेंस का कोई उनके पास सिस्टम नहीं था। सर तो ओएमटी बहुत अच्छा मॉडल था, जिसमें रोड मेंटेन भी हो रही थी, उसके ऊपर रेवेन्यू भी कलेक्ट हो रहा था, और सर्विसेज जो क्रेन, एम्बुलेंस, पेट्रोलिंग, वो सब सुविधाएं जनता को उपलब्ध थी। इसमें कोई डिफिकल्टी सर आप फेस करते हैं इस में, कलेक्शन टोल में या ओएमटी मॉडल में? You are feeling, you are giving some suggestion to the government whether you can improve something in this? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग होती जा रही है, सिस्टम और सुधरता जा रहा है, और हिंदुस्तान में थोड़ा सा हमें 1 या 2% तो लेके चलना पड़ता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसको एग्जम्प्ट करना पड़ता है। हाँ जी सर। तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग से वो भी कंट्रोल होता जा रहा है। अब यही है कि गवर्नमेंट को उसका लॉ एनफोर्समेंट और बेटर करना पड़ेगा, जिससे कि टोलिंग सक्सेसफुली और चलती रहे। और दूसरा अगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैवर्ड प्रोजेक्ट्स को हमें मॉडल और सर, बढ़ाना है, जो हैवर्ड मॉडल है, whether it is a very successful model sir? इसमें क्या अभी एक आफ्टर कोविड some negotiation is required for that? यस डेफिनेटली सम नेगोशिएशन विल बी रिक्वायर्ड। सभी तरह के मॉडल में, चाहे वो बीओटी हो, टीओटी मॉडल हो, सर ओएमटी हो, या इवन टोल कलेक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हो, हाँ जी इसमें जो फोर्स मेजर क्लॉज है, इसको सर। थोड़ा लिबरली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जिसके कारण कि जो भी कंसेशनर्स को प्रॉब्लम आएगी उसको गवर्नमेंट एड्रेस कर सके। क्योंकि अगर ये वाले जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुए सर या इनको परेशानी आई, तो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट में भी गवर्नमेंट को दिक्कत आएगी और फ्यूचर काम कराने में समस्या मेरा आएगी। सर सबमिशन इतना है, जो 40% गवर्नमेंट का एनएचआई का स्टेक होता है, whether you feel that it should be increased, कुछ इंक्रीज करना चाहिए उनको, या वो उसका मॉडल ही जो जो फाइनेंशियल मॉडल उनका है उसमें कोई चेंज चाहिए अदर देन एचएएम और ईपीसी इन इंफ्रास्ट्रक्चर? कोई फाइनेंशियल मॉडल यू वांट सम चेंज शुड बी देयर? नहीं सर, 40% का मॉडल तो ठीक है अभी तक, और अब तो और बल्कि इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट फंडिंग थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी। सरकार का बहुत सारा पैसा इस पैंडेमिक को टैकल करने में खर्च हो गया है, तो अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की और ज्यादा आवश्यकता होगी, और इस तरह के हैम प्रोजेक्ट्स ज्यादा से ज्यादा आएंगे। राइट सर। तो सर एनी अदर थॉट्स फ्रॉम योर साइड, बिकॉज सर यू आर डीलिंग विद स्किल डेवलपमेंट आल्सो फॉर इंजीनियर। आई थिंक दिस इज ए वेरी न्यू कंसेप्ट जो आपने इंट्रोड्यूस किया है। जो यंग इंजीनियर हैं उनके कॉलेज में जाकर उनको स्किल डेवलपमेंट कैसे करना है, ये आपका सर नया कंसेप्ट मुझे नजर आता है। ऐसा मैंने देखा नहीं, मैं जब पढ़ा है आपके बारे में मुझे लगा कि आई थिंक दिस इज मॉडल। यू कैन टेल समथिंग अबाउट स्किल डेवलपमेंट सर? स्किल डेवलपमेंट तो मेरा पैशन है। तभी तो मैं मैं पूछ पिछले रहा हूँ कई सर, सालों से सोचता था कि दैट्स व्हाई आई एम जी, आस्किंग यू सर। अभी उसमें क्या मैं क्या पिछले आप कई कर रहे सालों से सोचता था हैं कि सर? जो हम लोगों ने इंडस्ट्री में इतने सालों में सीखा है, सर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने यंगस्टर्स को ये पास ऑन कर सकें। सर
तो इस वजह से हमने स्किल डेवलपमेंट का रोड सेक्टर के लिए काम शुरू करा। मेरा ये कहना है कि स्किल डेवलपमेंट का एक्चुअली थोड़ा सा ब्रीफ में ऑडियंस के लिए भी थोड़ा बेनिफिट होगा। अब मुझे भी थोड़ा पता लगेगा स्किल डेवलपमेंट कैसे आप उनको इंट्रोड्यूस करते हो, जाके आपके पास टाइम मिलता है, इतनी बड़ी आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, क्या खुद जाकर उनको कुछ बोलते बताते हैं या कोई आपने ऐसा फैकल्टी रखे हुए हैं जो कि उनको जाके एडवाइस करते हैं, कैसे होता है सर ये? नहीं, हम लोग कोशिश करते हैं, हम कॉलेज के बच्चों को अपनी प्रोजेक्ट साइट पर बुलाते हैं, राइट, उनको फर्स्ट हैंड साइट का अनुभव देते हैं, सर। क्योंकि कॉलेज में तो लेक्चर देने वाले काफी लोग होते हैं, सर। पर बच्चों को साइट का अनुभव कि कैसे कंस्ट्रक्शन साइट हैंडल होती है, क्या वहाँ वर्किंग कंडीशंस होती हैं, तो सर। उनको बहुत अच्छा लगता है, उनको फील भी होता है कि हम इंजीनियरिंग करने के बाद ये हम करने वाले हैं, तो वो एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। और जैसे आपने बोला फैकल्टी, तो हम अपने जो वर्किंग इंजीनियर्स हैं जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उससे इन बच्चों को इंटरेक्शन कराते हैं, तो वो उनके लिए बड़ा सक्सेसफुल एक वो अपॉर्चुनिटी होती है। जो आप बता रहे हैं, आई थिंक इट इज एवरीबॉडी शुड अडॉप्ट दिस, तो इंडिया का कहां से कहां पहुंचेगा स्किल डेवलपमेंट, व्हाट यू आर डूइंग इट, आई थिंक इट इज एक्सीलेंट मॉडल सर। तो आई मस्ट अप्रिशिएट योर एफर्ट सर, क्योंकि इंजीनियर आल्सो यू आर गिविंग ऑल सच इंफॉर्मेशन। सर मैं इतना जानना चाह रहा हूँ, जो बूट है इसमें से यू आल्सो डन सम प्रोजेक्ट ऑफ बूट, what type of difficulty you face that to execution of the boot, because one is land acquisition or something or clearance something must be there, और कुछ डिले प्रोजेक्ट हो जाते हैं, तो उसका रीजन क्या होता है सर? गवर्नमेंट का रीजन होता है या फंड का रीजन होता है? फंड अरेंजमेंट नहीं होते या कुछ ऐसा, व्हाट आर द रीजन सर? अधिकतर प्रोजेक्ट्स में गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कमियां रहती हैं सर, परंतु एज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हम लोग कोशिश करते हैं कि जहाँ पे भी जो छोटी मोटी कमी है, सरकार की तरफ से अगर जमीन मिलने में दिक्कत आ रही है, तो अपने रिसोर्सेज यूज करके, अपने एफर्ट यूज करके उसको जल्दी से जल्दी क्लियर कर लें और प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दें। एक बार प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो फिर बहुत सारी छोटी मोटी दिक्कतें अपने आप दूर हो जाती हैं। तो कोशिश यही रहती है कि कहीं मानो इलेक्ट्रिकल लाइन शिफ्ट करनी है, कहीं पीएचई की अंडरग्राउंड लाइन शिफ्ट करनी है, कहीं पेड़ काटने की अनुमति लेनी है, तो वो थोड़ा एडिशनल एफर्ट करना पड़ता है, बट जहां तक कोशिश होती है थोड़ा अतिरिक्त समय में वो काम हो जाता है। दूसरे सर, जो वर्कर आपके नेटिव प्लेस पे चले गए हैं उसको आने में टाइम लगेगा, उसके बाद जो उनकी सैलरी है या कोई उनको इंसेंटिव है, वो क्या आप विल कंटिन्यू टू पे देम as just as industry I'm talking, not as a personally from you, what is your view? They should pay for that the salary or something? दो बात, मैं आपके दोनों प्रश्न का अलग अलग जवाब दूंगा कि जैसे जो स्टाफ हमारा चला गया था, अभी 18 और 19 तारीख को हमें निर्देश आया कि इनको टोल्स को इमीडिएटली वापस शुरू करना है सर। तो हमें भी थोड़ा सा मन में शंका थी कि 2 दिन के अंदर हम कैसे अरेंज कर पाएंगे, परंतु 20 तारीख को रात को बिल्कुल सही समय पे हमारे सारे टोल्स ऑपरेशनल हो गए। और जैसे मैंने बताया कि जब 20% टोल रेवेन्यू से शुरुआत हुई थी, उसमें से कुछ प्रोजेक्ट तो अभी 60% रेवेन्यू तक भी आना शुरू हो गया है और ऑलमोस्ट 60-70% स्टाफ भी टोल पे आ गया है। सर कौन से स्टेट में ऐसा चल रहा है सर? मुझे तो लग रहा है यहाँ तो महाराष्ट्र में तो ऐसे लग रहा है भी जैसे कोई चल ही नहीं रहा, कोई ट्रैफिक नहीं चल रहा। कौन सा स्टेट है जहाँ इतना सर जो बता रहे हो इतना कलेक्शन हो रहा है? इसमें क्या है सर कि जो पर्सनल ट्रैफिक है वो तो अभी डेवलप नहीं हुआ है सर, पर जो कमर्शियल ट्रैफिक है वो पिकअप होना शुरू हो गया है। जैसे ईस्टर्न यूपी में अगर आप जो टीवी पे न्यूज भी आ रही है, अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न इंडिया ज्यादा इम्पैक्टेड है। ईस्टर्न यूपी में कंपैरेटिवली इसका पेंडेमिक का असर भी कम है और वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस शुरू हो गई है। बिहार में क्या हमारे टोल्स हैं जिसपे बिहार में 60% तक भी रेवेन्यू आने लगा है। बिहार में चल रहा है सर ये? बिहार में मेरा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। आपका प्रोजेक्ट नहीं है, आपके यूपी में ज्यादा लगते हैं। यूपी पंजाब में भी है सर? यूपी में है, पंजाब में भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। पंजाब में करीब करीब 40% तक रेवेन्यू आया है। अच्छा, हम लोग करीब 16 स्टेट्स में काम कर रहे हैं अक्रॉस द कंट्री, राइट फ्रॉम पंजाब टू चेन्नई एंड इन द वेस्ट फ्रॉम गुजरात टू मिजोरम इन द ईस्ट। Thank you very much, sir. I will come back to you, sir. Now I am coming to Mr. Anand. हाँ जी, Anand Rathi साहब. Rathi साहब, you are the financial expert. I think you are chartered accountant also, and giving this company infra में आपका काफी 12-13 साल का experience भी है, and you are expert in financially modeling or something like that. So what do you feel that because आज के time में जबकि fixed expenses will continue
एंड आपके पास रेवेन्यू मॉडल में कोई पैसा अभी जैसे कलेक्शन है या दूसरा है, वो कोई सोर्स नहीं है, बैंक भी यदि टर्म लोन ले रखा है तो यू आर नॉट गेटिंग एनी मनी एक्सेप्ट द डेफरमेंट, तो हाउ यू फील दैट व्हाट शुड बी फाइनेंशियल मॉडल फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स? क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? Sir, thank you very much to all the participants. सर ये जो फाइनेंशियल मॉडलिंग है, तो हम लोग जो काम कर रहे हैं, वी आर इनटू टू टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स, वन इज बीओटी एंड वन इज ईपीसी। ईपीसी अगेन जैसे विनोद जी ने भी बताया, नितिन जी ने भी बताया कि कुछ आपका कुशन रहना चाहिए इन टर्म्स ऑफ कंटीजेंसी, कि जो बिकॉज ऑफ पेंडेमिक हो गया या और भी कोई एक्टिविटी हो गया, समझो कभी फ्लड आ गया, तो उस वजह से उस स्टेट में थोड़ा एक्टिविटी खत्म हो गया। अभी तो अक्रॉस इंडिया है एक्चुअली, जनरली क्या मानसून में तो एक पर्टिकुलर रीजन में प्रॉब्लम होता है, बट अभी तो अक्रॉस इंडिया या अक्रॉस ग्लोब वर्ल्ड ही प्रॉब्लम हो रहा है, तो 2-3 महीने का वो तो कंटीजेंसी रखना ही पड़ेगा, राइट सर, जो ईपीसी के लिए है। और बीओटी में ऑफ कोर्स एडिशनल कॉस्ट एस्केलेशन होगा बिकॉज ऑफ टाइम, जब टाइम ओवररन हो रहा है तो उसका कॉस्ट एस्केलेशन होगा ही होगा हर एक के लिए। मतलब फॉर एवरी सिनेरियो वी हैव टू बिल्ड अप कंटीजेंसी, सब सर्टेन कंटीजेंसी इन टर्म्स ऑफ व्हेनेवर वी आर लेट्स से बिडिंग फॉर ए प्रोजेक्ट। तो ये अब थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है इस टाइम में कि ये प्रॉब्ली इट विल बी रन फॉर व्हाट टाइम, 2 महीने 3 महीने 6 महीने, गॉड नोस। बट कंटीजेंसी फॉर्म में हम लोग मतलब फाइनेंशियल मॉडलिंग बिल्ड करते हैं। उसको कैसे आप इसको सर ओवरकम करेंगे इस फाइनेंशियल बिल्ड को, क्योंकि बैंक यदि नहीं देता है तो जेन्युइन कैपिटल, बैंक वैसे सपोर्ट कर रहा है सर, केस टू केस बेसिस बैंक सपोर्ट भी कर रहा है। और तो आपके ईपीसी में तो आपके पास मैक्सिमम सर नॉन फंड बेस्ड लिमिट होनी चाहिए, तो फंड बेस्ड तो कमी होनी चाहिए। नॉन फंड बेस्ड पर तो बैंक शायद प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो फंड बेस्ड पर दे रहा है एज पर दिस सर्कुलर, तो जो मुझे इंफॉर्मेशन है। तो नॉन फंड बेस में कोई लिमिट, कोई रिलैक्सेशन भी दिया नहीं है बैंक ने सर, और फंड बेस में 10% दिया है। तो अगेन अभी तो ये फर्स्ट मंथ है सर, अभी मतलब कितना चलता है, 3 महीने 2-3 महीने तो चल जाएगा, उसके बाद में अगेन गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो फ्रंट ओपन करना पड़ेगा, सम रिलैक्सेशन एडिशनल। मैं उसी पॉइंट पर आना चाह रहा था कि आप क्या सजेस्ट करते हो गवर्नमेंट को, क्या आपकी सजेशन सर एज ए फाइनेंशियल पर्सन, व्हाट डू यू सजेस्ट द बैंक्स या टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट? कोई आपके फेडरेशन ने कोई ऐसा टेकअप किया है विद द गवर्नमेंट? जो हमने सर फेडरेशन के थ्रू भी सजेस्ट किया है एनएचआई को, कुछ माइलस्टोन पेमेंट है, एनएचआई जो हमारे को पेमेंट माइलस्टोन सर्टेन माइलस्टोन बेसिस पे रिलीज कर रहा है सर, दैट इज लॉन्ग प्रोसेस, तो उसको थोड़ा सा कर्टेल करके सो दैट कि अपफ्रंट पेमेंट हो जाए, थोड़ा 2 महीने तक वेट नहीं करके, और मंथली बेसिस पे, सो दैट कि अपना वर्किंग कैपिटल जो एलोंगेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन सर, वो हम लोग रिड्यूस कर पाए, वो भी हमने सजेस्ट किया है एनएचआई को। जैसे सर एलसी है, एलसी डेवलपमेंट प्रोग्राम, एलसी की आपकी ड्यू डेट आ गई मई में, तो उसके लिए फंड अरेंजमेंट है नहीं, तो क्या वो बैंक उसके लिए कुछ हेल्प करेगा आपकी, या कर रहा है क्या? अभी बैंक में सर एलसी पर्टिकुलर एलसी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें बैंक को भी कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन है नहीं सर, बोथ फ्रॉम बेसिकली आरबीआई साइड और मिनिस्ट्री साइड, तो ये एक चैलेंज है। बट एनएचआई हमारे को सपोर्ट कर रहा है सर, दे आर इवन दे आर टेकिंग आवर रिप्रेजेंटेशन बेसिकली, और दे आर वर्किंग ऑन दैट। तो दे आर गिविंग यू फंड्स सर, सम फंड्स दे आर प्रोवाइडिंग टू यू? यस यस यस, थोड़ा वो मतलब दे आर कंसीडरिंग इट, तो कुछ 31 मार्च में काफी पेमेंट भी किए उन्होंने, सारे जो पेंडिंग पेमेंट थे वो रिलीज किए, और अभी भी वो दे आर टेकिंग बेसिकली इनटू कंसीडरेशन, हमारा जो भी रिप्रेजेंटेशन जा रहा है, दे आर वर्किंग इन देयर, अगेन उनकी भी अपना एक लिमिट है, बट दे आर वर्किंग इन दैट साइड आल्सो। सर मेरा पॉइंट है ये, क्या फाइनेंशियल मॉडल क्या होना चाहिए, क्योंकि यू आर द राइट पर्सन बी एच डी सिचुएशन में, फाइनेंशियल मॉडल क्या होना चाहिए सर इनके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए? तो कंटीजेंसीज है, अगर आप 3 महीने का कंटीजेंसी बना लेते हैं, हाँ जी, उसके बियॉन्ड तो एक्चुअली लेट्स से अगर बिडिंग के टाइम में उससे ज्यादा कंटीजेंसी आपने डाल दिया तो प्रोजेक्ट ही नहीं तो मतलब यू कैन नॉट फोर्सी दैट काइंड ऑफ, अब ये तो अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन आ गया है, तो इसका तो ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। बट अगर आप इतना ज्यादा कंटीजेंसी डाल देंगे तो प्रोजेक्ट ही नहीं मिलता है अपने को, प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। नहीं, मेरा सर पॉइंट सिंपल था कि जो मार्च में विदाउट इंस्पेक्शन यू कैन रेज द बिल, दैट इज अ स्पेसिफिक पॉइंट। जब बिल आपने कुछ काम किया, बिल रेज करना है आपको, सपोर्ट किया है हमारे को उसमें, बिना इंस्पेक्शन के दे आर ऑनरिंग द बिल्स, राइट, वेदर यू कैन रेज द बिल।
विदाउट उसमें जैसे थोड़ा सा डिजिटल जो अभी जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ है उससे भी हमारे को काफी फायदा हुआ है। ड्रोन की वजह से वीडियो बना के हम लोग उनको शेयर कर पा रहे हैं, साइट का इंस्पेक्शन। वी आर अरेंजिंग इंस्पेक्शन दिस वे, मतलब दे आर एक्सेप्टिंग योर नोशन सर, है जी, वो कर रहे हैं। तो और सर मेरा अनदर पॉइंट बैंक के रिलेटेड है, जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं ट्रेडिशनली जो है मैं समझता हूँ पीएसयू बैंक ही दे रहे हैं, उसमें एनपीए लेवल बहुत ज्यादा हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर में, जस्ट लाइक पावर सेक्टर और समथिंग, तो कुछ बैंक आर रिलक्टेंट टू गिव ए फाइनेंस टू द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो व्हाट इज योर सजेशन कि क्या कुछ ऐसा फंड होना चाहिए जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को, कुछ है फंड ऐसे जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करते हैं बैंक के अलावा भी, व्हाट इज योर सजेशन, बिकॉज दीज आर द इकोनॉमी में सबसे बड़ा ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ मेजर थिंग। जस्ट आई गिविंग एन एग्जांपल, इन रूरल जो पीपल हैं उसको आपने सब्जी बेचना है, किसी ग्रेन बेचना है, दे विल हैव टू गो सम अदर प्लेसेस वेयर दे कैन गुड पैसा मिल सके उनको। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ दे कैन नॉट डू इट। नाउ इंडिया हैज प्रोग्रेस लाइक एनीथिंग, तो व्हाट इज योर सजेशन दैट फंडिंग के लिए देयर शुड बी ए सेपरेट इंस्टीट्यूशन फॉर दैट, और ये बैंक को ही कुछ बैंक को करना चाहिए, क्योंकि बैंक के एनपीए लेवल बढ़ गए तो बैंक कहता हम तो फंड नहीं करेंगे, ऐसे भी केसेस आ रहे हैं जो बैंक फंड नहीं कर रहा, तो उसके लिए सर क्या सजेशन आपका? ये साइड में सर गवर्नमेंट भी कंटिन्यूस बेसिस पे एफर्ट्स डाल रही है। इनफैक्ट जो इनविट हो गया, रिट हो गया और ये बॉन्ड मार्केट हो गया, गवर्नमेंट का काफी टाइम से दे आर पुटिंग देयर एफर्ट्स। अब उसमें गवर्नमेंट को थोड़ा सा और एग्रेसिव, जैसे यूएस में और यूके में क्या है, वहाँ की सेंट्रल बैंक ने दिस टाइम इन दिस पर्टिकुलर पीरियड सेंट्रल बैंक एक्चुअली हैव बॉट द बॉन्ड्स ऑफ द कंपनीज। अभी अपने यहाँ पे आरबीआई जैसे, आरबीआई डायरेक्टली बॉन्ड परचेज नहीं कर रही, आरबीआई वाया बैंक आ रही है, और बैंक आर एक्चुअली रिस्क अवर्स दिस टाइम। बैंक में उनका खुद का सेक्टरल कैप बोलो या बैंक का अपना पास्ट एक्सपीरियंस बोलो, so they are actually not willing to lend more into this sector, right? वो एक चैलेंज है। तो आरबीआई को अभी डायरेक्टली अपफ्रंट आना चाहिए, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के बॉन्ड उनको खुद को अपनी बुक्स में परचेज करना चाहिए, जो इनफैक्ट कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज में हो रहा है। ये आपका बहुत अच्छा सजेशन है सर जो आप कह रहे हो, मैं भी इसी बारे में सोच रहा था। इंस्टेड ऑफ द बैंक आरबीआई शुड इन्वेस्ट, दैट इज मोर बेटर। क्यों ना, जो एनसीडी ले रहा है बैंक कहता है सर इसमें देख लीजिए ना, जो ऑक्शन वो भी किया है 25,000 में मिला कितना 50%, banks have not participated even, right, so that was the major cause। यदि वो रिजर्व बैंक ही सीधा दे उनको, एनबीएफसी को दे या इंफ्रास्ट्रक्चर को दे, तो दैट इज मच बेटर ना फॉर दैट, राइट? बैंक तो मैं मतलब बैंक कर सकती है, रिजर्व बैंक को करना चाहिए। सर मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन की, वो ही वाज आस्किंग फॉर रिस्क फंड। The banks, the Reserve Bank should create a risk fund. They should provide it. Or government should give a risk fund, or government should provide a government guarantee for the additional limits. And what are you feeling for that? For risk fund or government guarantee should be there? सर ये रिस्क फंड एक्चुअली लॉन्ग टर्म फंडिंग, जो हमारा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, तो इसमें क्या है, सस्टेनेबल फाइनेंस होना जरूरी है। मतलब प्रोजेक्ट में फंडिंग इज रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग टर्म। अब वो टेम्परेरी मेजर कुछ भी डाल दो, चाहे रिस्क फंड की फॉर्म में आ जाए, तो जो जैसे इनविट प्लेटफॉर्म है इनका, इनविट प्लेटफॉर्म को इनको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उसको और एडवर्टाइजमेंट और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, सो दैट रिटेल जो इन्वेस्टर है दे कैन पार्टिसिपेट मोर एंड मोर। उससे क्या, एक तो लॉन्ग टर्म फंडिंग और एक एडिशनल फंडिंग जो सोर्स है, एक एडिशनल रिसोर्स बनता है जो लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को अपने को फाइनेंस करने के लिए, मतलब विच विल हेल्प इन लॉन्ग वे। अदरवाइज ये क्या टेम्पररी मेजर जो भी, अब गारंटी अगर गवर्नमेंट गारंटी देने लग गया ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, तो वो खुद ही बनाने जैसा लग जाएगा कि मतलब एनएचआई फिर बीओटी प्रोजेक्ट लाए क्यों? मतलब आपको गवर्नमेंट गारंटी की जगह व्हाट दे शुड डू, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? इनको क्या सर, रिटेल में मतलब बॉन्ड मार्केट को ज्यादा इसमें पॉपुलेट करना चाहिए, इनफैक्ट इनविट को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, सो दैट एवरी रिटेल इन्वेस्टर, जैसे हम लोग पीपीएफ में पैसा डाल रहे हैं सर, वो लॉन्ग टर्म के लिए जा रहा है, पीपीएफ 15 साल के लिए वो पैसा ब्लॉक हो रहा है उसमें। तो अगर ये प्लेटफॉर्म अच्छा बना देते हैं, स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवा देते हैं फॉर इन्वेस्टर्स विद ड्यू डिलिजेंस, मतलब प्रॉपर उसका रेगुलेटर भी होना चाहिए उसमें, सो दैट कि इन्वेस्टर को मतलब इन्वेस्टर को ऐसा नहीं होगा कल को लॉस मेकिंग प्रपोजिशन हो जाए। सो इन दैट सेंस अपने ऐसे इन्वेस्टर, अगर बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर अगर आ जाते हैं, देन जैसे
बैंक का सर लैंडिंग कैसा है? बैंक का लैंडिंग में भी रिटेल इन्वेस्टर इज द मेन सोर्स। हाँ जी, हाँ बैंक जी का जो बेसिकली कैपिटल रेज करने का या फंड रेज करने का मेन सोर्स इज रिटेल लैंडिंग, रिटेल डिपॉजिट्स। सर। सर तो ये अगर डायरेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट कर ले तो ये ज्यादा अच्छा हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए। सर आपका वेल थॉट सर, आई एम थैंकफुल टू यू। फाइनेंशियल आपका यू आर एक्सपर्ट इन दैट। आई थिंक योर थॉट विल बेनिफिटेड द पार्टिसिपेंट। तो सर मैं विनोद अग्रवाल जी के पास जाना चाहता हूँ। विनोद अग्रवाल जी, जो ये अपना गवर्नमेंट का जो विच आई आस्क यू, मैं पहले आपसे पूछा है कि 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी करना चाहते हैं, उसके लिए फंड की रिक्वायरमेंट भी है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। आप कैसे इसको देखते हैं भी आने वाले 5 सालों में या 10 सालों में आप इंफ्रास्ट्रक्चर को कहाँ देखते हैं इसको? हाँ सर, जैसा आनंद ने बताया सर जैसे कुछ खाली अपन लैंडर के भरोसे या गवर्नमेंट के भरोसे रहेंगे तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हो पाएगा। राइट तो सर। जैसे आनंद ने बताया, इनविट को इनको और पॉपुलर करना चाहिए। इनविट मॉडल जो है इसमें रिटेल इन्वेस्टर आ सकता है। सर अभी जैसे हैम के हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सर। तो हैम जो लिंक कर रखा है गवर्नमेंट ने, बैंक रेट से लिंक कर रखा है। हाँ जी, हाँ जी। तो जब ये बिड किए थे तब बैंक रेट अच्छी थी तो एक अट्रैक्टिव था इन्वेस्टर्स के लिए। हाँ जी। लेकिन अभी बैंक रेट इतना कम हो गया है तो बड़े इन्वेस्टर उसमें नहीं आ रहे हैं, क्यों? बड़े इन्वेस्टर को 14-15% का उनको आईआरआर चाहिए, सर लेकिन जो छोटे इन्वेस्टर हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर है, वो आज 10% पे भी आ सकते हैं आपको। बिल्कुल ठीक तो है। इनको इनविट मॉडल बहुत पॉपुलर करके और उसके अंदर फैसिलिटेट गवर्नमेंट को करना चाहिए जिसमें रिटेल इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर आ सके। राइट सर। एक तो आपका सजेशन है कि स्टोर जो है रिटेल इन्वेस्टर इसको बूस्ट करना चाहिए। बिल्कुल सर बिल्कुल। इसमें जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या रखा है, भी 100% तक आ सकते हैं आप, उसमें क्या आपका व्यू है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये आ रही है तो उसमें क्या बेनिफिट हो रहे हैं हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को? देखिए साहब, एफडीआई जो आप कह रहे हैं आ रही है, पहले हैम प्रोजेक्ट्स में काफी लोग ये लोग इंटरेस्टेड थे आने में। सर अब उनको भी बहुत अच्छा आईआरआर चाहिए, 15% 16% उनको आईआरआर चाहिए। सर। तो वो हर जगह उतना आईआरआर अगर मिलेगा तो फिर यहाँ के लोकल जो कंसेशनर जो काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ बचता नहीं है। सर तो अगर गवर्नमेंट को कुछ इस तरह से उसमें अट्रैक्टिव चीजें डालनी चाहिए कि उनको एक रिटेल को और फॉरेन को सबको एक रीजनेबल रिटर्न मिल जाए और छोटे इन्वेस्टर भी आ सके। अच्छा, इसका मतलब कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसके लिए बेनिफिशियल है इंडिया के लिए, यदि उसको आना चाहे तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए कोई एफर्ट सर आप कर रहे हैं? सर आपने कुछ किया है इसके बारे में? कुछ एफडीआई में कुछ लिया है आपने क्या? नहीं, हम लोग तो एडीवी से जरूर फंड लिया है, सर बाकी और कोई एफडीआई से हम लोगों ने नहीं लिया। जी सर, दूसरा जो मैंने पहले भी पूछा था आपसे, इवन 5900 बिलियन के कहते हैं प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस में है, जी हाँ जी। उसके क्या आपके सुजेशन है? उसमें गवर्नमेंट शुड प्रायोरिटाइज द थिंग्स, उसको क्या प्रायोरिटी में ये पहले कर लो बाद में कर लो, कुछ ऐसा होना चाहिए या उसको जैसे चल रहा है वैसे चलना चाहिए? नहीं, गवर्नमेंट के लिए प्रायोरिटी तो देखिए साहब, वो प्रायोरिटी होना चाहिए हाँ जी। कि ग्राउंड पे जिन एक्टिविटी में जो जल्दी काम शुरू हो सकते हैं, सर तो जो हाईवे सेक्टर और रेलवे सेक्टर, ये सर। दो सेक्टर ऐसे हैं कि इमीडिएट इन पे काम शुरू हो सकता है। सर तो हमारा तो कहना यही है कि प्रायोरिटी हाईवे सेक्टर को आज भी बहुत ज्यादा जरूरत है देश की जनता को। तो हाईवे सेक्टर और रेलवे सेक्टर दो सबसे प्रायोरिटी पे काम शुरू होने चाहिए। तो आप तो सर रेलवे में भी आपने लगता है मुझे डाइवर्ट किया है। जी हाँ जी हाँ। आपका क्या एक्सपीरियंस है सर रेलवे में जो नहीं, ट्रैक? रेलवे में अच्छा है सब, रेलवे में थोड़ा स्लो जरूर है सर क्योंकि नए डिपार्टमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं आरवीएनएल में, लेकिन अच्छा है, उनके साथ एक्सपीरियंस अच्छा है। अच्छा, दूसरा सर आजकल ये सिस्टम चल गया है वर्क ऑन होम, घर से काम करने का, जी हाँ जी हाँ सर। तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में सर ये क्या यूजफुल रहेगा क्या, या ये हमेशा के लिए? मैं तो समझता हूँ इंडिया में जो देखिए है, साहब, क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में तो गिट्टी बाटे का काम है, तो नहीं वो नहीं, घर से तो तो कैसे बाकी होगा। काम है सर, बाकी जो काम है आज पॉसिबिलिटी हो सकती कुछ है सर? कुछ एक्टिविटी जैसे हम लोगों ने अभी इस कोरोना के कारण हर बीमारी में भी कुछ न कुछ बेनिफिट होते हैं। या सर। ये बेनिफिट हुआ है कि घर से काम करना लोग सीख गए हैं। यस जैसे आज हम लोगों के जैसे डिजाइन से रिलेटेड जितनी भी आज टीम हम बात कर रहे हैं आपसे, देखिए सर आपको 200-400 आदमी जो है सुन रहा है, बिल्कुल। 250-300 आदमी तो आपको सुन रहा है, आपकी बातें को सुन रहा है।
तो मतलब बिल्कुल। ऐसा मौका बहुत कम आता है ना सर। जी हाँ घर जी में हाँ। मैं जो समझता हूँ एज ए रिसर्चर इन इंडिया कि मैं पहले से ज्यादा बिजी हो गया हूँ आपको बताएं, कुछ ना कुछ पढ़ने के तो लिए, वही कह रहा हूँ ना, कुछ लिए, बीमारी में भी कुछ बेनिफिट होते हैं। इस बीमारी का बेनिफिट ये हुआ है हमारी आप समझे ये पॉजिटिव एस्पेक्ट में सर ये बेनिफिट ज्यादा हो गया लगता है मुझे। तो जैसे कुछ काम घर से लोग कर पाएंगे, जैसे हमारे डिजाइन के काम है, कुछ सर, अकाउंट्स के काम है, सर HR डिपार्टमेंट है, ये लोग काफी घर से कर पाएंगे, तो जो इसमें ऑफिस का सर स्टाफ है। जॉब बाकी तो लॉस होगा सर क्या? व्हाट डू यू क्या फील? साहब? जो जॉब है लोगों का लॉस होगा जो घर से काम करेंगे तो? नहीं नहीं साहब, हमारे सेक्टर में तो कोई जॉब लॉस नहीं होने वाला है। जॉब लॉस नहीं होने वाला। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आपके सर व्यू क्या है? आप कितना एक्सपीरियंस आपको है? 2 डिकेड इसी में है, आप पॉलिसी बनाते हैं, बिडिंग करते हैं, इस कंपनी को कहाँ से आप कहाँ ले गए? 5000 से ऊपर आपका रेवेन्यू है एंड प्रॉफिटेबिलिटी मैं देख रहा हूँ, आई थिंक इट इज गुड प्रॉफिटेबिलिटी। तो सर इसका सीक्रेट क्या है विच यू कैन गिव मंत्र टू अवर अवर जूनियर पीपल? आपने इतना बड़ा काम कर दिया तो नहीं नहीं साहब, ये देखिए, मैं possibility है। ये किसी एक आदमी के कारण कुछ भी नहीं हो सकता है। सर सर ये पूरा टीम वर्क का नतीजा है। जो हाँ जी टीम वर्क है, मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँ, ये जो सर बिजनेस है मैंने नहीं शुरू किया, मेरे पिताजी ने शुरू किया था। सर। तो हम और लोग आप तो प्रमोटर है ना, प्रमोटर आप डायरेक्टर है ना प्रमोटर है, प्रमोटर ठीक है, आप लोगों की भाषा में प्रमोटर हैं, लेकिन हम वर्कर हैं, हम सब लोग वर्कर हैं। सर। तो ये टीम वर्क का नतीजा है। आज हम लोग करीब, हमारे कंपनी में 13,000 एम्प्लॉई हैं। सर तो हम उनको ये कहते हैं कि हमारे एक परिवार के सदस्य हैं 13,000। दूसरा, कुछ चीजें में आज अपॉर्चुनिटी बहुत है साहब, काम बहुत आने वाले हैं, सर लेकिन आप अपने इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का देखिए साहब, इतिहास देखिए, हर 5-7 साल बाद कुछ ना कुछ कंपनियां फेल हो जाती है। सर। तो आप अपनी कैपेसिटी के अनुरूप ही काम लीजिए। बहुत काम मतलब जो जितने भी हिस्ट्री देखेंगे, जो लोग भी फेल हुए हैं वो ज्यादा काम के कारण फेल हुए, कम काम से कोई फेल नहीं होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में। सर। तो काम अपने कैपेसिटी के अनुरूप काम लें, और टाइमली कंप्लीशन सबसे बड़ा टारगेट होना चाहिए। राइट सर। और क्वालिटी, तीसरा क्वालिटी। हाँ जी, तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। आपने गुरु मंत्र दे दिया सबको सर। तो स्मॉल अब वर्ड फिर आपने पूरा गुरु अभी मंत्र दे अभी दिया। हमारे रोड सेक्टर में क्या हो रहा है, सब कुछ क्या है कि पहले हमारे आइटम रेट टेंडर होते थे, सर तो क्वांटिटीज वगैरह गवर्नमेंट देती है, शेड्यूल जी करके होता था जिसके अंदर हर चीज की क्वांटिटीज होती थी। सर। अभी लमसम कॉन्ट्रैक्ट, EPC कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आपको क्वांटिटी का असेसमेंट आपको करना है। सर। तो बिडिंग में प्रॉपर असेसमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपने बिड अगर गलत कर दिया तो आप कैसे बाहर निकलेंगे, भगवान भरोसे हैं। निकलेंगे तो सर। बिडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिडिंग में प्रॉपर असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सर सर। तो मेरा सब लोगों से यही कहना है कि बिडिंग के टाइम स्पेशली ध्यान रखें कि गलत बिड नहीं हो आपसे। बहुत बढ़िया बात सर। एक क्वेश्चन है आपके लिए। जी हाँ सर। इसने पूछा कितना टाइम लगेगा ये जो स्टॉप एक्टिविटी को रिज्यूम करने के लिए? आपसे ही स्पेशल आपके नाम से पूछा है, ये अग्रवाल जी से पूछिए ये कितना टाइम लगेगा जो ये स्टॉप एक्टिविटीज है उसको चालू करने के लिए? सर एक बार सब कुछ अगर ये मान लें कल से कोरोना बिल्कुल खत्म है सर तो 1 महीने के अंदर अंदर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन मुझे डाउट है कि एकदम तो नहीं खत्म होने वाला है, सर धीरे धीरे ये सब चीजें आएगी। सर। अभी अप्रैल खत्म हो रहा है, मई का खाली 1 महीना बचा है, फिर उसके बाद मानसून शुरू हो जाएगा, बारिश आ जाएगी सर। बारिश आ जाएगी। तो मैं यही हमारे कहना सेक्टर चाह रहा में था। मानसून 3 के जो सेकंड क्वार्टर जो है मानसून सर का, सर ये बड़ा डल सा रहता है। सर। तो मुझे लगता है 20, अगर अभी 1-2 महीने में सब कुछ चीजें ठीक हो जाती है तो भी कंपनियों की प्रोग्रेस पे जो रेवेन्यू है 20 से 25% का हिट तो आएगा सब। आएगा बिल्कुल। तो जो सर कॉन्ट्रैक्ट आपको डेडलाइंस हैं, हाँ उसके लिए आपकी फेडरेशन या दूसरा NHI को या दूसरे को आपने अप्रोच किया उसको वो एक्सटेंड करने बिल्कुल के लिए? गवर्नमेंट का व्यू क्लियर है साहब, इसके अंदर जो है वो फोर्स मेजर में टाइम एक्सटेंशन दे देंगे सबको। अच्छा अच्छा। तो टाइम एक्सटेंशन होने के बाद वो कोई ज्यादा इश्यू नहीं आएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा प्रॉफिट पे तो आएगा, क्योंकि 2 से 3 महीने की स्टाफ को सैलरी, फिक्स एक्सपेंडिचर वो तो लग ही रहे हैं सारे। जो कॉस्ट ओवररन होगा वो गवर्नमेंट उसको कंपनसेशन के लिए गवर्नमेंट देखिए साहब, हम लोग कमा भी गवर्नमेंट से ही रहे हैं। नहीं वो तो आप क्या गवर्नमेंट को अप्रोच कर रहे हैं सर? वो नहीं नहीं, देखिए साहब क्या है
कि थोड़ा बहुत कुछ होगा, सर तो वो मैंने शुरू में ही ये कहा था कि इतनी कैपेसिटी हमें होनी चाहिए। गवर्नमेंट क्या है, हम लोगों से मिलकर सर ही आपका गवर्नमेंट, तो बड़े प्रैक्टिकल हैं सर, आप बहुत हाँ, प्रैक्टिकल हैं सर आपका। तो गवर्नमेंट भी हम लोगों से मिलकर ही तो गवर्नमेंट बनी हुई है, हाँ बिल्कुल ठीक तो है। अदर पार्टी थोड़ी है गवर्नमेंट कोई। ठीक कह रहे हैं। तो ठीक है, थोड़ा बहुत तो अपन को बियर करना पड़ेगा। अगर हाँ नहीं, मैं इतना अगर ज्यादा हो जाता, मैं नहीं बियर कर पाता हूँ, तो फिर गवर्नमेंट के पास जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट का ये व्यू क्लियर है कि फोर्स मेजर में टाइम एक्सटेंशन दे देगी, सर प्राइस एस्केलेशन आपको दे आपके देगी। बारे में एक आदमी ने इतना बढ़िया लिखा है, वो लिखता है जीआर इज एक्सीलेंट कंपनी टर्म ऑफ एग्जीक्यूशन एज ए फाइनेंशियल पैरामीटर। कहता है ऐसी कंपनी हमें 15-20 और इंडिया में हो जाए तो इंडिया बहुत आगे तक जा सकते हैं। नहीं, जरूर होगी साहब, जरूर होगी, क्यों नहीं तो होगी। ऐसा थोड़ा आपके लोगों बारे को, में, मैं खुद नहीं बोल रहा, किसी ने लिखा है इसके नहीं, ऊपर, आपने मैं कुछ उनको, मैं भी होगा। बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आपको भी बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। लेकिन सब, आप सबका सपोर्ट होगा, गवर्नमेंट का सपोर्ट होगा, तो क्यों नहीं आएंगे सब लोग, आगे आएंगे। आज अपने 130 करोड़ लोग हैं, तो क्या अपन 50 अच्छी कंस्ट्रक्शन कंपनियां नहीं बना सकते हैं? जरूर बना सकते हैं। एक मिस्टर गौतम सिन्हा है सर, राय हैं, ये एक्स जीएम है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के। वो कह रहे हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इज नीड ऑफ द आवर टू बूस्ट द इकोनॉमी। उसका ठीक है, कहता है इंडिया जो है गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए जो कि आपकी इकोनॉमी को बढ़ेगा। इसके बारे में अग्रवाल जी क्या सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल साहब, मैं तो हमेशा याद करता हूँ, मैंने वो टाइम देखा है जब वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो सारी इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री सारी खत्म थी। उन्होंने रोड सेक्टर पे काम शुरू किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर पे एकदम पीएमजी स्वयं। हम लोग शुरुआत में, हमारी ग्रोथ पीएमजी स्वयं से हुई है। हम लोग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सबसे, राजस्थान में सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग थे हम लोग। अच्छा जी। तो उस वक्त नेशनल हाईवे के और पीएमजी के दोनों साइमल्टेनियसली काम शुरू हुए थे। हाँ जी, हाँ जी। वो जब काम शुरू हुए और पूरे कंट्री लेवल पर प्लानिंग वे में जब काम शुरू हुए, तो सब इंडस्ट्री को उससे बहुत सहारा मिला। बहुत बढ़िया सर। सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, टायर इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सबको। और उसके कारण आज आपके सामने है देश की पिक्चर। तो ये इसमें भी अब वापस जब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग चालू करेगी, तो वापस, आज सीमेंट इंडस्ट्री, सब सीमेंट प्लांट बंद पड़े हैं, आपके सामने है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ट्रक्स की क्या हालत है, सबको पता है आपको। राइट सर। तो जब ये काम बढ़ेगा तो वापस प्रोडक्शन शुरू होगा और वापस देश अपने पटरी पे आएगा। सर आप बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं, आई अप्रिशिएट सर अग्रवाल जी, आपका इतना किया है। तो आई एम कमिंग टू नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल जी, जरा आपका गुरु मंत्र बताएंगे, जितना आपने इस कंपनी को कहां से आप कहां ले गए, इसका कुछ हमारे पार्टिसिपेंट भी जानना चाहते हैं भी, आपका क्या गुरु मंत्र है, हाउ यू डन ऑल सच थिंग्स सर, एज बेसिकली यू आर इंजीनियर। इस कंपनी को आपने कितने टूल के लिए नया टेक्नोलॉजी आप लेकर आए, एवरीथिंग, स्किल डेवलपमेंट, जैसे पहले आपसे डिस्कस किया मैंने, स्किल डेवलपमेंट किया, और आप क्या करना चाहते हैं या कंट्री के लिए फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या आपके व्यूज कुछ बता पाएंगे सर? सर बेसिकली हम लोगों ने जब बीओटी सेक्टर शुरू हुआ तो रोड कंस्ट्रक्शन को तेजी से टेकअप किया सर। और जैसा विनोद जी ने भी कहा, दो बड़ी चीज थी, एक तो समय से काम को पूरा करना और क्वालिटी से काम को पूरा करना। सर ये दोनों चीज जब हमने इनके पीछे ध्यान दिया तो हमें सक्सेस मिली। और सेकंड जो आपका प्रश्न है कि जो टोलिंग में ऑटोमेशन किया, ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन ने किया है। हम लोग तो थोड़ा रिलक्टेंट थे कि अगर हम अपने खुद की कंपनी में इसको डेवलप करेंगे तो दिक्कतें आ सकती है, पर यंगस्टर्स ज़्यादा टेक्नोलॉजी सेवी होते हैं और उन्होंने टेकअप किया। और अब हम करीब करीब पूरे वेस्टर्न इंडिया के जितने टोल्स हैं NHAI के, उसमें हम टोल ऑटोमेशन सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज को भी दे रहे हैं, और हमारे खुद के सारे प्रोजेक्ट्स पे ऑटोमेशन है। उससे हमारा कंट्रोल बहुत अच्छा हुआ और हमें बड़ा ज़्यादा प्रोजेक्ट को करने में सुविधा मिली। ये जो ऑटोमेशन आपने किया सर, इट इज ए सेल्फ इन्वेंशन या आपने किसी से हायर किया, कैसे किया इसको, जो ऑटोमेशन आपने? ये हमारी इन-हाउस ही हमने डेवलप किया है। और क्योंकि हम लोग सर्विस प्रोवाइड, मतलब हम लोग खुद ही फील्ड पे ऑपरेटर भी थे और खुद की टीम डेवलप कर रही थी, तो हमें जैसे जैसे अनुभव होते गए उसके आधार पे हमारी यंगर जनरेशन ने उसको टेकअप किया और काफ़ी अच्छे से अब हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं टोल्स की। और ये कॉन्फिडेंस होने से कि हमारा सिस्टम ठीक है, हम लोग ज़्यादा प्रोजेक्ट ले सकते हैं और उसको अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। सो सर, ये जो ग्रोथ के लिए आपने कहा कि
विजन फॉर ग्रोथ, इसमें हाँ। मेरा गवर्नमेंट को एक सजेशन है सर कि अब गवर्नमेंट का भी काफी पैसा खर्च हो चुका है इस पैंडेमिक को हैंडल करने में, सर तो गवर्नमेंट को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। हाँ, वही मैं बात पहले कर रहा तो था आपसे, कुछ ऐसा जी, प्रायोरिटाइज करके ही बताना पड़ेगा उनको। सर उसके लिए क्या जैसे सजेशन देते हैं सर आप? सर जैसे अभी हमारा जो रेलवे फ्रेट कॉरिडोर है हाँ वो जी करीब करीब 80-90% पूरा हो चुका है, जो वेस्टर्न कॉरिडोर है। सर। और इवन ईस्टर्न ईस्टर्न पर जो कॉरिडोर है दिल्ली टू कलकत्ता, उस पर भी काफी काम हुआ है। तो गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि जो चलते हुए प्रोजेक्ट हैं जो 80-90% पूरे हो, इनको पहले पैसा लगा के पूरा करे, राइट सर। जिससे कि उसका रिजल्ट आना शुरू हो। सिमिलरली जैसे जो ग्रीनफील्ड हाईवे शुरू किए हैं, सर इसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हाईवे टेकअप किया वो पूरा कंप्लीट हो। अगर हाँ, ग्रीनफील्ड हाईवे में 10% या 5% भी सेक्शन पूरा नहीं हुआ, तो पूरा इन्वेस्टमेंट आइडल हो जाएगा, उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा देश को। बिल्कुल आई एग्री विद यू कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा आवश्यक है, सर। इसलिए गवर्नमेंट को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कौन से प्रोजेक्ट्स पे पैसा खर्च करे। दूसरा सर, ह्यूमन कैपिटल कहते हैं द मेन क्रिटिकल एस्पेक्ट्स, ह्यूमन कैपिटल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स। तो आप ये लाइवर कुछ मिटिगेट हो गया है, चले गई हैं, उसको वापस लाना या दूसरा रेल पर लगाना, तो इट विल नॉट ए डिफिकल्ट टास्क। व्हाट डू यू फील दैट? डिफिकल्ट, बट वी हैव टू फर्स्टली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अपनी जो वर्किंग टीम है उसकी सेफ्टी का बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक टीम में अगर एक आदमी भी अफेक्ट हो जाता है तो पूरी टीम का मोरल बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। सर तो हमें जो रिक्वायर्ड फैसिलिटीज हैं, जो प्रिकॉशंस है वो लेनी चाहिए, और एक बार वो ले लेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि जो थोड़ा सा अभी रेजिस्टेंस होगा लोगों में, पर जैसे जैसे चीजें सुधरती जाएंगी, और लकीली हमारे देश में लोगों का रेजिस्टेंस भी बेटर है, हम लोग ज्यादा इम्यून होते हैं, क्योंकि जो हमारे कंडीशंस हैं, वेदर हमारा थोड़ा हॉट वेदर है कंट्री में, उसके कारण हम लोग जल्दी इस फाइट को जीत सकेंगे। और अगर एक बार जैसा अभी तक हमने रेजिस्टेंस मेंटेन किया है, तो हमारे देश के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वेरी नाइस सर। सर किसी ने एक पॉइंट अपना एक पार्टिसिपेंट ने लिखा है कि गवर्नमेंट एंड आरबीआई इज सपोर्टिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, लेकिन जो लैंडर हैं आई थिंक उनका रोल कोई ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। व्हाट डू यू फील सर इन दिस? कुछ ऐसा है लगता है आपको कि जब लैंडर टेंडर्स को डेफिनेटली एक पॉजिटिव रवैया लाना पड़ेगा। ये विनोद जी अभी ने है भी या ये नहीं बात है? रेज करी थी, राठी जी है ने भी कही अभी थी। है या नहीं है? जो गवर्नमेंट की डायरेक्शंस है, आरबीआई की डायरेक्शंस है भी, आप इनको डेफर कीजिए, डेफर तो कर दिया सबने मेरे ख्याल में, तो एंड 10% आप दीजिए उसका, वो भी एक गाइडलाइंस है। तो बैंक तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं ना सर, लेंडर का रोल तो पॉजिटिव ही मुझे लगता प्रोवाइड है कर कि रहे हैं, परंतु जैसा इवन फोर्स मेजर क्लॉजेज में है, फोर्स मेजर क्लॉज में जितने दिन के लिए अगर लॉकडाउन रहा उसका एक्सटेंशन मिल जाएगा, हाँ उसके जी एक्सपेंसेस भी मिल जाएंगे, उसका इंटरेस्ट O&M एक्सपेंस मिल जाएंगे, हाँ जी परंतु जो इसकी इंस्टॉलमेंट है वो कहीं से भी नहीं मिलती है। तो उसमें लेंडर्स को सपोर्ट देना पड़ेगा कि क्योंकि सबको समझना पड़ेगा कि अगर ये प्रोजेक्ट में अगर आज 50 दिन कलेक्शन नहीं हो पाया सर। और इसके बदले 50 दिन बाद में मिलने वाले हैं, तो लेंडर्स को इमीडिएट डिसीजन लेके जो अपनी इंस्टॉलमेंट है उसको भी उतने एडजस्ट कर लेना चाहिए, जिससे कि प्रोजेक्ट का फाइनेंस कंटिन्यूड रहे, और उनका रीपेमेंट तो हो ही जाएगा, क्योंकि एडिशनल 50 डेज का एक्सटेंशन मिलने वाला है। नहीं वो ये तो डिसीजन गवर्नमेंट को, लेकिन बैंक्स को जल्दी लेना होगा। लोगों के माइंड में क्या असर है भी, जो बैंक्स हैं उसके पास लिक्विडिटी बहुत आ गई है, वो लिक्विडिटी की इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या दूसरी जगह, वो दे आर कीपिंग विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अर्निंग द इंटरेस्ट। क्या ये ठीक है? ऐसा ऐसा कुछ फीलिंग है लोगों में क्या? वो अर्न करने के लिए रिजर्व बैंक में 3.75 और रेपो रेट पर जमा करके उसको अर्न कर रहे हैं, ऐसा somebody was asking like that। तो क्या लगता है आपको? सर जैसा बोलते हैं कि ships are safer in anchor, सर but ships are not made to remain in anchor। यस सर, यू आर राइट सर। एंकर में डेफिनेटली बैंक को अगर सस्ता गवर्नमेंट के फंड में इन्वेस्ट करना है, इट इज सेफर, और उसके लिए बैंक बनी नहीं है। बैंक हैज टू टेक दैट रिस्क, इट इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज टू टेक दैट रिस्क, एंड रिस्क के साथ ही रिवॉर्ड लिंक्ड होता है। वो तो रिस्क तो सर लेना ही पड़ेगा। somebody asking ये पैरामिड जो है कोविड में इतने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उसका बेयर बर्डन जाएगा कॉन्ट्रैक्टर के पास, तो how the government help or something like that, it is a natural way। Agarwal ji has very rightly from the beginning telling
भाई ये तो थोड़ा सा जो हम लोग हैं उनको सहन ही करना पड़ेगा थोड़ा सा तो। सर ये जो मैं बोलूं सब थोड़ा सर। हाँ यस सर। ये सर जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का जो हैम प्रोजेक्ट हैम मॉडल है, हाँ जी, वो मेरी समझ में पीपीपी के लिए बेस्ट मॉडल है और सबसे सेफ मॉडल है बैंकर्स के लिए। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन बैंक को एक माइंड में वो उन्होंने माइंडसेट बना लिया है कि साहब नहीं रोड सेक्टर रिस्की है। हाँ यस। हैम मॉडल इतना सेफ है साहब कि अगर वो थोड़ा सा भी माइंड अप्लाई किया, आई एग्री विद सर, हैम मॉडल जो है हाँ इतना सेफ है कि model, उसमें टोटल जो पेमेंट, क्योंकि 40% पेमेंट एनएचएआई या मिनिस्ट्री जो दे रहे हैं 40% वो दे रहे हैं और माइलस्टोन बेसिस है, उसी के अकॉर्डिंग बैंक अपना रिलीज कर सकती है, डिस्बर्समेंट रिलीज कर सकती है। तो इस तरह के मॉडल और डेवलप अगर कंसर्न जो मिनिस्ट्री और करें जिसमें टोटली सेफ है, अगर बिल्कुल ही कोई यूं आदमी कोई सोच ले कि नहीं साहब मुझे तो करना ही नहीं है रोड सेक्टर में, वो एक अलग बात है। लेकिन हमें ये लगता है कि अगर मैं बैंकर होता तो मुझे तो जीरो रिस्क नजर आती है हैम मॉडल में। अब है ही रिस्क है, जीरो तो रिस्क नहीं उसमें। गवर्नमेंट उसको उसमें भी अगर लेंडर अगर पीछे हटते हैं और वो फिर तो उनके लिए जो नितिन जी ने कहा उनको तो फिर वो वहां पार्क आरबीआई में ही पार्क करना 3.75 राइटिंग लाइक दैट। वो सर एक आदमी ये लिखता है कि बैंक को से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अप्रेजल ही थोड़ा सा मुश्किल लगता है। वो एज ए मैन्युफैक्चरिंग दूसरे में तो एक्सपर्ट है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट का अप्रेजल्स है शायद उसमें कुछ बैंक लैकिंग करते हैं। तो फिर आप जैसे लोगों की सेवाएं लें साहब, हमारे आनंद राठी है सीएफओ, ये एक्सपर्ट हैं। तो somebody asking this question, I want a reply from you. कितने बैंकों का हम सपोर्ट करेंगे सर? एज ए रिसर्चर बाहर से देखिए सर, एज ए रिसर्चर इंडिया हम तो हेल्प कर रहे हैं सर उनको। जिस चीज का नॉलेज मुझे नहीं है मैं बाहर से सर्विस लेता हूँ सब कंसल्टेंट से। सर हम प्रोवाइड करने को तैयार बैठे हुए हैं। एज ए रिसर्चर इंडिया टेक्निकल इकोनॉमिक वायबिलिटी हम स्टडी करते हैं, उनको डराते हैं, मेरी रिपोर्ट पर वो सैंक्शनिंग करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन सम बैंक माइट बी शाई टू गिव द लोन टू इंफ्रास्ट्रक्चर, भी को कहता है शायद इंटेंजिबल है जी ये, तो इसमें हम रिलायंस बेच नहीं सकते, कर नहीं सकते। इट माइट बी सम रीजन, क्योंकि मैं तो खुद ही जीएम था सेंट्रल बैंक में, तो मुझे लगता है ऐसा नोशन नहीं था। ओनली सिक्योरिटी नहीं है जी उसमें, क्यों तो एक लैंड प्रोजेक्ट बना दिया, we cannot recover that amount. Such notions in the mind of the banker. आपको जब डिस्बर्समेंट करना है साहब डेवलपमेंट के बाद करना है, सर देना ही नहीं है। यस सर। जब डेवलपमेंट के बाद देना है तो आपको रिकवर किससे करना है साहब? नेशनल डेवलपमेंट में आपका पैसा काम आया है, इसी कारण से 100 में से एक प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है तो क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल ठीक है जो आप सर अग्रवाल साहब कह रहे हैं ना, मेरे को अगर एडवांस दिया और मैं लेके चला गया तो आपको रिकवर करने में मुश्किल हो सकती है। लेकिन मैंने अगर प्रोजेक्ट पे काम कर दिया है और उसको आप डिस्बर्स कर रहे हो तो फिर कहाँ दिक्कत है आपको? नहीं सर वो तो सब पार्टिसिपेंट भी इस पर जो आपके व्यू है 100% आप। और ये है मैं तो कहता हूँ रोड के अलावा दूसरे सेक्टर में भी इनको लाना चाहिए गवर्नमेंट को सर। इतना बढ़िया मॉडल है ये प्रोजेक्ट जो है ना सर गुप्ता साहब, इसमें जो बेसिकली जो बैंकर का माइंडसेट है ना सर, वो चेंज करने का जरूरत है। बैंकर ने अभी तक हिस्टोरिकली जो है ना सिक्योरिटी बेस्ड लेंडिंग किया है सर। यू आर राइट। हाँ यू आर राइट। कैश फ्लो बेस्ड जो फंडिंग है वो नहीं, ये इसमें सिक्योरिटी चाहिए क्यों सर? बैंक आज तक का रिकॉर्ड देखो ना सर, बैंक ने सिक्योरिटाइज करके कितना एनकैश किया है, मतलब कभी वो कोई चीज उसको वो सिक्योर नहीं कर पाया अपने लेंडिंग में। और कैश फ्लो में अगर जहाँ पे उनके पास में एस्क्रो अकाउंट के राइट्स है, बैंकर्स आर हैविंग एस्क्रो अकाउंट राइट्स, तो उनके पास में देन 100% चांसेस आर देयर कि वो सिक्योरिटाइज मतलब वो अपना जो है लोन रिकवर कर पाते हैं। राइट सर। यहाँ पे एक थोड़ा माइंडसेट है जो बैंकर कम्युनिटी में, बैंकर फ्रेटर्निटी में भी थोड़ा चेंज होने की जरूरत है। बैंक का थोड़ा आउटलुक माइंडसेट शुड बी चेंज। व्हाट यू फीलिंग लाइक दैट? दे शुड अपॉइंट समय अपना टेक्निकल पर्सन हु कैन अप्रेज द प्रोजेक्ट प्रॉपर्ली, or they can take the assistance of like Research in India for a technical economic viability study. एक सर पार्टिसिपेंट कह रहा है कि अब 3 months के लिए गवर्नमेंट शुड नॉट सब्सिडाइज द पीपल, सब्सिडाइज द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अग्रवाल जी ने पहले ही कह दिया व्हाई वी शुड बियर समथिंग। लेकिन व्हाट यू फीलिंग? समबडी आस्क्ड लाइक दिस। ठीक है सर, देखो कुछ कंपनियों की कंडीशन थोड़ा सा कमजोर हो सकती है सर, कुछ चीजों पे गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है। आज जैसे पीएफ कंट्रीब्यूशन है और कुछ जीएसटी की पेमेंट है, तो उसमें गवर्नमेंट थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। राइट सर। तो सर अगेन मिस्टर नितिन अग्रवाल साहब, ये आपके व्यू क्या है इसके बारे में? थोड़ा सा एक समराइज पोजीशन बताएंगे आप? व्हाट डू यू फील जो हमने डिस्कस किया है, इससे क्या हमें लगता है
किस वे में हम जा रहे हैं, किस वे में हमें जाना चाहिए? सर मेरा ऐसा सोचना है कि जैसा अभी हम कंपैरेटिवली कम अफेक्टेड हैं और हमारा एक मेन कॉम्पिटिटर चाइना हमेशा से रहा है, बिल्कुल और सर। जैसा G7 कंट्रीज का और बाकी जो कंट्रीज अफेक्टेड है उनका अभी चाइना के प्रति रवैया बहुत खराब रहने वाला है, सर तो हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। सर और अगर हम अपने पहली बात तो पैंडेमिक के असर को कंट्रोल इसी तरह करते रहें सर और उसके बाद इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, तो दुनिया भर का पैसा जो कई कंट्रीज ने स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया है, अमेरिका ने $2 ट्रिलियन का, जापान ने $1 ट्रिलियन का, वो सब पैसा अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होगा। सर तो अगर हम अपने कंट्री में ऐसी अपॉर्चुनिटी बना के रखें तो हमें कोई पैसे की कमी नहीं आएगी, हमारी इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी, हमारी यंग वर्कफोर्स है उसको सारी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अपनी ग्रोथ के लिए सबको मौका मिलेगा, और इंडिया कैन एक्चुअली दिस कैन बिकम एन अपॉर्चुनिटी कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को बहुत जल्दी अचीव कर पाए। मेरा तो सोचना है कि इस मौके का हमें बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है, बस हमें इसको ढंग से कंट्रोल करने की और एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की जरूरत है। राइट सर। हाँ जी, आनंद आनंद राठी साहब, आपका एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है सर? फाइनेंशियल में तो आई थिंक यू आर द मास्टर, तो व्हाट यू फील, तो फाइनेंशियल क्या होना चाहिए इसमें आज कोविड के बाद या कोविड से अभी क्या जितना लॉस होगा हमें, how you feel that you should be compensated or you can come out of that scenario? So what do you feel like this? सर मेरे को ये लगता है अभी आज की डेट में इंडिया में इकोनॉमी स्टैंड स्टिल है, मतलब देयर इज नो मूवमेंट ऑन इन इकोनॉमी, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। Right. तो अभी तो गवर्नमेंट को स्टैंड लेना पड़ेगा, उनको ही अपफ्रंटिंग करना पड़ेगा, स्पेंडिंग अभी गवर्नमेंट ही कर सकती है, नो प्राइवेट कंपनी और कोई भी प्राइवेट कंपनी, बिकॉज प्राइवेट कंपनी इज नॉट हैविंग एनी बैकिंग। गवर्नमेंट को बैकिंग चाहिए नहीं, तो गवर्नमेंट हैज टू कम अप विद देयर स्पेंडिंग प्लान, वो थोड़ा अपफ्रंटिंग करके मैक्सिमम जितना भी स्पेंडिंग करती है व्हाटएवर इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर करे या कोई दूसरे सेक्टर में करे, सो दैट ये इकोनॉमी शुड बी बैक ऑन ट्रैक सर। उसके बाद में ही इसमें मतलब अदरवाइज अभी सारे फाइनेंशियल मॉडल जीरो है सर। राइट, ठीक है सर, लेकिन फाइनेंशियल मॉडल तो बनाना ही पड़ेगा ना सर। जैसे एक पार्टिसिपेंट कह रहा है जी इंटरेस्ट जो है चार्ज नहीं करना चाहिए बैंक को, कोई आदमी कह रहा है जी इसके जो मार्जिन मनी शुड बी रिड्यूस्ड। मार्जिन मनी तो ऑलरेडी रिजर्व बैंक का सर्कुलर आ चुका है, यू कैन रीसाइकिल, मार्जिन रिड्यूस कर सकते हैं, इवन साइकिल को रीसेट कर सकता है बैंक, दैट ऑलरेडी बीन अलाउड। लेकिन मेजर पॉइंट इज नॉट टू चार्ज इंटरेस्ट, इसके बारे में व्हाट डू यू फील दैट बैंक शुड नॉट चार्ज? लेंडर से सपोर्ट नहीं हो सकता बिकॉज़ लेंडर इज अगेन हैविंग लायबिलिटी टुवर्ड्स देयर डिपॉजिटर्स। नेचुरल, आई एग्री विद यू, व्हाट यू आर टेलिंग वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज़ हर एक का एक्सपेंसेस इनकम दोनों है, तो इट इज ओनली गवर्नमेंट दिस टाइम, गवर्नमेंट कैन कम अप और उनको थोड़ा स्ट्रांगली आना पड़ेगा, उनको जो नेक्स्ट 2-3 इयर्स के एक्सपेंसेस करंट ईयर में या अपफ्रंटिंग जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो अपफ्रंटिंग करके इकोनॉमी में वापस से उनको साइकिल घुमाना पड़ेगा। सर ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि मेरे माइंड में भी था, लेकिन किसी पार्टिसिपेंट ने लिखा है कि अब 3 महीने का डेफर 3 मंथ्स का डेफरमेंट दे दिया, जून में फिर अगेन पेबल है, तो उस समय वो कहाँ से पैसा आएगा? तो हाउ इट इज पॉसिबल फॉर 3 मंथ्स पीरियड, आफ्टर दैट यदि वो नहीं देगा तो अकाउंट विल बी क्लासिफाइड एनपीए अकाउंट। तो हाउ यू आर गोइंग टू मीट? आपकी कंपनी तो मीट कर सकती है, लेकिन स्मॉल कंपनी जितनी भी हैं, तो हाउ इट इज पॉसिबल दैट आफ्टर 3 कोई कंपनी मतलब इनडेफिनेट पीरियड के लिए तो कोई भी कंपनी नहीं कर सकती सर। यस वन थिंग इज कि किसका कितना है क्वेश्चन, मतलब कोई 3 महीने कर लेगी, कोई 6 महीने कर लेगी सर। उसके बाद में तो ये मतलब दिस पॉइंट ऑफ टाइम सर ओनली गवर्नमेंट सपोर्ट इज रिक्वायर्ड। आप 3 महीने में करें 6 महीने में करें सर, ओनली थिंग इज कि वंस दिस गवर्नमेंट टैकल द सिचुएशन ऑफ कोविड, जो भी उनको करना है वो करके अगले 15 दिन महीने में गवर्नमेंट हैज टू कम विद द स्ट्रांग स्टिमुलस पैकेज और व्हाटएवर गवर्नमेंट को ही कर सकता है। तो इस पे फाइनेंशियल मॉडल आपके ख्याल में क्या होना चाहिए सर? 3 मंथ्स का होना चाहिए, 6 महीने का होना चाहिए, या 1 साल का डेफरमेंट होना चाहिए, या इसको एक इसमें क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी? अभी प्रॉब्लम क्या हो गया सर, पैसा जो मनी स्पेंडिंग जो है वो नोबडी इज एक्चुअली कमिंग फॉरवर्ड। कोई भी आदमी कैपेक्स करने के लिए रेडी नहीं है, कोई हायरिंग करने के लिए रेडी नहीं है, बिकॉज देयर इज नो विजन। इतना ब्लाइंड हो रखे हैं अभी, एवरीवन इज सो ब्लाइंड कि उनको मालूम नहीं पड़ रहा आगे 6 महीने में होने वाला क्या है। हाँ जी। एंड वो सारा विजन, ये विजन तो गवर्नमेंट अगर दे
government if is come up with some strong ideas कि हम ये करने वाले हैं with their मतलब which must be reflected in their budget as well sir, उनको मतलब दिखाना भी पड़ेगा, then only a entrepreneur can come forward कि हाँ अभी गवर्नमेंट का ये विजन है, that's why I am coming forward and putting the this particular industry और ये सब। ये फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर जो है इम्पोर्टेंट है सर। एक तो रिसेशन मार्केट में है, तो रिसेशन होने से कब तक ये रिसेशन चलेगा, हाउ इफेक्टिवली यू कैन कंट्रोल दिस रिसेशन। तो ये सर ये क्यों ना यदि सपोज करो मई में खुल जाता है तो यू फील दैट रिसेशन विल कंटिन्यू इन इंडिया जस्ट लाइक दैट, और इकोनॉमी शुड बी इन बैड शेप। इकोनॉमी certainly would be in bad shape सर। मई जून के बाद में तो मॉनसून आ जाता है, तो उसमें वैसे भी वो डल सीजन है। हाँ जी। एंड अगेन गोइंग फॉरवर्ड सर, इफ अभी चैलेंज ये है बिकॉज government is not giving guidance what actually in terms of money what they would be spending in terms of infrastructure sir। तो हम लोग तो आगे का कुछ प्लान ही नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ हमारा कैपेक्स कुछ करना है, हायरिंग करना है, कुछ प्लान करना है, तो हम लोग को तो मतलब देन प्रॉब्ली अभी आज की डेट में ये है बिकॉज गवर्नमेंट फाइनेंसेस ऑलरेडी वीक है सर। गवर्नमेंट को वो एडिशनल बर्डन जो आया हुआ है उसके हिसाब से अगर गवर्नमेंट ये सोचे तो वन कैन टेक ए क्लू कि गवर्नमेंट खर्चा करेगा ही नहीं, इंफ्रा पे पैसा है ही नहीं, लगाने के लिए गवर्नमेंट के पास में पैसा कहाँ है। तो अगर मैं ये व्यू लेता हूँ देन आई नीड टू वाइंड अप कि मैं फिर कुछ उठा भी ये सारा सब मेरे को ये सारा हटाना पड़ेगा, ये सारा मतलब आई कैन नॉट अफोर्ड। ऐसा है वर्ल्ड की इकोनॉमी इज इन ए प्रॉब्लम, सबकी जीडीपी मोस्टली इन माइनस एक्सेप्ट इंडिया। इंडिया व्हाट प्रोजेक्शन इज it will be around 1.9% growth in the GDP. It will be 1.9%. जब जीडीपी हमारा नेगेटिव में नहीं गया अभी तक या जाएगा नहीं जैसे प्रोजेक्शन कर रहे हैं, तो हाउ रिसेशन विल बी देयर, हाउ द इकोनॉमी विल बी इफेक्टेड। जो बाकी वर्ल्ड के जितने कंट्रीज हैं सब वो माइनस में बता रहे हैं जीडीपी ग्रोथ को, इंडिया की इकोनॉमी फिर भी बेटर है। तो हाउ यू रिएक्ट ऑन दैट एज ए फाइनेंस पर्सन, हाउ यू रिएक्ट ऑन दैट? सर जीडीपी नेगेटिव नहीं हो मतलब जीडीपी नेगेटिव हो गया तो प्रॉब्लम है ही है। अगर इवन इफ लेट्स से अपना जीडीपी ग्रोथ 1% पे आ जाए 2% पे भी आ जाए, यस सर, बट जो एक्सपेंसेस है, हाँ जी, जो ओवरहेड है आज की डेट में मतलब वो जो ग्रोथ चाहिए सर वो ग्रोथ तो हम जैसे वो ग्रोथ मिलेगा नहीं, और वो ग्रोथ नहीं मिलेगा देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द ओवरहेड। राइट सर। तो आपके ख्याल में तो ग्रोथ के बिना इकोनॉमी नहीं हो सकती है, कहने का मतलब यही हुआ ना आपका? तो हाँ एक नॉर्मल ग्रोथ तो चाहिएगा सर। अच्छा, और नॉर्मल ग्रोथ के बिना 3 महीने 6 महीने का उससे क्या है कि करंट पॉलिसी का जो परफॉर्मेंस थोड़ा सा वीक होगा। हाँ जी, बट मतलब यू नोबडी कैन सस्टेन यू नो कंटिन्यूस दिस बेसिकली कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट मोर देन 1 ईयर ऐसा। राइट सर। तो ये जो सर डेफरमेंट है, people participant again and again writing that 3 months period is not a sufficient period. It should be at least 6 months. More should be allowed, and all prudential norms for classifying the account as NPA should be deferred at least for a 6-month period. तो सर आपका क्या इसमें व्यू है? तो गवर्नमेंट should do it for 6-month period for that, and all NPA norms should be changed accordingly. गवर्नमेंट को इनफैक्ट 3 महीने के लिए भी किया डेफरमेंट, तो देन आल्सो आरबीआई केम अप विद द प्रोविजन ऑफ एडिशनल प्रोविजन जो 10% दे आर स्टिपुलेटिंग के व्हिच वुड बी रिवर्स इन केस अगर वो डेफरमेंट इज नॉट कन्वर्टिंग इनटू एनपीए। तो गवर्नमेंट को तो सर बैलेंस करके रखना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन सर कहीं मेस भी नहीं होना चाहिए कि मतलब वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन लेंडिंग और डेफरमेंट ऑफ रिपेमेंट। रियली आनंद साहब सपोर्ट नहीं कर पाएगा। Really, Anand sir, I am very, very happy to have this panelist. So, lastly, word from Mr. Vinod Agarwal ji. Sir, what is your suggestion to all the participants? Because all bankers are also there in this conference, entrepreneurs were also there, some builder was also there, some infrastructure companies were also there. Because you have such a long experience of 2 decades and taken this company to a highest position. So, at these circumstances, difficulty, what are your suggestions to the entrepreneur, to the participants, sir? Last a few words, sir. क्या आप लास्ट में दो बता दीजिए कि आपका क्या विचार है
कि कैसे इन लोगों को इसको थोड़ा सा आपकी एडवाइस कैसी होनी चाहिए? थोड़ा मेरा तो ये कहना है कि ये जो प्रॉब्लम आई है हम लोग इससे घबराए नहीं, पर मजबूती के साथ खड़े रहें। सर ठीक है, ये बहुत टाइम है, 2 महीने का, 3 महीने का निकल जाएगा। हाँ जी, और अपने लिए सबकी खुशकिस्मती है कि हम आज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सर विजनरी हैं, उनका बहुत अच्छे डिसीजन है। और सर खास करके फिर दूसरी चीज मैं हमारे रोड सेक्टर में और कहूंगा कि हमें मतलब एक तो वो क्या कहते हैं, वो सोने पे सुहागा है, नितिन जी गडकरी हमारे मिनिस्टर हैं, यस, तो उनका भी विजन बहुत जबरदस्त बहुत है। जबरदस्त विजन है सर उनका, हाँ, बहुत जबरदस्त विजन। तो ये जो अंधेरे के दिन है निकल जाएंगे, हम मजबूती के साथ खड़े रहें और घबराए नहीं। वेरी नाइस, बहुत बहुत अच्छा सर। सर लास्ट वर्ड फ्रॉम सर नितिन सर, तो आप कुछ एडवाइस करना चाहेंगे सर? सर मेरा भी सबसे पहले कहना है कि हम लोगों को सबको मिलके कोशिश करनी चाहिए कि इसके कोविड के इम्पैक्ट को कम से कम बढ़ने दें, क्योंकि अगर हम समस्या को ही छोटा कर देंगे तो उसका सोल्यूशन तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है सर, तो ठीक है सर। विनोद जी ने भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है सीएसआर में, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त सर। और हम लोगों को सबको कोशिश करनी चाहिए कि इसका इम्पैक्ट को रिड्यूस करें। आज जो हमारे देश की स्थिति है काफी देशों से बेहतर है, इसको हम और जल्दी से जल्दी हैंडल करें और वापस फिर पूरी ताकत से इस मौके का जो बेस्ट बेनिफिट ले सकते हैं लें। मुझे भी पूरा विश्वास है कि हम लोग इसको अच्छे से कर पाएंगे और बहुत जल्दी अच्छे दिन वापस हमें देखने को मिलेंगे। सर बहुत अच्छी है, इसी नोट के साथ सर राठी साहब, लास्ट फाइनेंशियल योर एक्सपर्ट कमेंट्स, लास्ट फ्यू वर्ड, व्हाट यू वांट टू से एज ए फाइनेंशियल पर्सन? ये तो अच्छा लर्निंग है सर, मतलब फॉर फाइनेंशियल सेक्टर वेयर जो कंटीजेंसी प्लान विच जनरली वी रेड इन बुक्स ओनली, के कंटीजेंसी प्लान, प्लान बी और कंजर्वेटिज्म जो है, this actually this time actually help us in learning those, and in fact this is giving the live example. सर अगर आप कोई कंपनी कंजर्वेटिव है और थिंकिंग ऑफ कि some bad times may come which may run for 2 3 4 5 months, तो इससे हर कंपनी को सीखना चाहिए कि there must be adequate cushion for in every financial model सर for every company. थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन जो पार्टिसिपेंट हैं, they have appreciated all the panelists, Vinod Agarwal ji and Nitin Agarwal ji and Anand Sethi. I think this is very lovely atmosphere discussion. जो हमने बात किया है वो दिल से बात किया है, इंस्टेड ऑफ हमने बुकिश नॉलेज में कुछ बात नहीं किया, हमने कोशिश किया है कि हम प्रैक्टिकल बात करें। तो सर रिसर्चर इंडिया के बिहाफ से मैं विनोद अग्रवाल जी का, नितिन अग्रवाल जी का, आनंद राठी जी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतना बहुमूल्य टाइम अपना दिया और अपना बिल्कुल सिंपल वे में, बड़े अच्छे वे में लोगों को एडवाइस किया। आई थिंक सर आपकी जो एडवाइस है जो पार्टिसिपेंट के काम आएगी वो यूजफुल रहेगी। ये बहुत लवली डिस्कशन है सर। इवन ऑल पार्टिसिपेंट्स has full appreciation for your contribution, sir. Thank you, I sir. think it will go a very long way. Thank you Thank very you, much. sir. Thank you. Uh, Thank you. Thank you, sir. sir. Thank you. Thank you very much. Thank you everyone. Thank you, sir. Thank you very much.